Guys, I know that we had started CAT 75 हार्ड का कोर्स एंड 75 डेज के लिए हम रोज ये वीडियोस डालने वाले फॉर द कोर्स स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू गिव देम 75 डेज के टास्क्स एंड द वीडियोस एंड एवरीथिंग बट इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ मैंने सोचा था दैट 7 to 8 डेज लगेगा कैपेसिटी रीच करने के लिए. इन द फर्स्ट डे विद इन 45 मिनट्स वी हैड ऑल एडमिशंस फिनिश्ड. तो उसके ऊपर एडमिशंस हम लेना बंद कर रहे हैं. वी विल नॉट बी एबल टू हम एक एक स्टूडेंट का ध्यान रखने वाले दैट वो कोर्स कंप्लीट कर रहा है या नहीं. दैट इज हाउ आई डू फॉर ऑल फैकल्टी स्टूडेंट्स. तो I will not be able to take more admissions in the CAT 75 hard. I suggest that you guys watch these 10 ये जो 10 दिन का हो रहा है वो तुम प्रॉपरली देखो एंड आई मेक श्योर दैट इन 10 दिन में भी मैं तुम्हें इतना कुछ सिखा पाऊंगा जो तुम प्रोबेबली बहुत सारी जगह पे और सीख नहीं पाओगे. एंड आई विल ट्राई टू गिव इट माय बेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीड मैथ्स और वो सारे सम्स तो हम रेगुलरली पोस्ट करते रहेंगे हमारे क्रैकविटिस के 75 हार्ड वाले ग्रुप में. वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी हमारे चैनल ज्वाइन करने के लिए. वहाँ पे स्पीड मैथ्स के सम्स आते रहेंगे. इफ यू हैव एनी other doubts then Crackavitist is ready to help you out, but the admissions are ended because we keep limited admissions. हम 100 150 200 students एक live lecture में नहीं भरते. That is not something that Crackavitist does. So thank you so much for the support. The response has been overwhelming and love you all for that. So yes, chalo, let's start the day 3. And I recommend that if you guys want to join Crackavitist के other courses which are for NMAT, SNAP, CET, ZMAT, then do it now because उनमें भी एक upper cap है and उसके ऊपर हम नहीं लेंगे students. So because still the upper cap there is much higher as compared to the 75 hard. So if you guys want to join, this is the time to join. Bye everyone. Bye मतलब अरे sum solve करते हैं sorry. तो D3 हम आज सॉल्व करने वाले हैं CAT 19 का स्लॉट 2. CAT 19 IIM कोरिकोड ने सेट किया था. दे आर नोन फॉर मेकिंग द इंग्लिश सेक्शन वेरी टफ. तो आज के इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान देना बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज की है. सेम चीज को वो ट्रिपल नेगेटिव्स में बात करते हैं. मतलब you will see a question जिसमें I will explain what is a triple negative and it is very complicated. उन्होंने इजी सी चीज को बहुत ज्यादा टफ करके बताया है and that is something that makes the exam a little tougher. So let's start with it. इसीलिए अगर तुम देखोगे ये वाले ईयर में इंग्लिश का कट ऑफ थोड़ा नीचे गिरा था. Let's check. VRs. Let's start with this one. पहला पैराजंबल. I suggest you guys read the पैराजंबल properly. Take 1 minute जितना पैराजंबल प्रॉपरली पढ़ो. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है दैट क्लॉक टाइम और वुमेन टाइम और मैन टाइम को कंपेयर किया गया है. सो इफ यू लुक एट द सेकंड वन, while dichotomies of men times and women time, clock time and carrying time can only be analytically useful. बट डाइकोटमी मतलब दोनों के डिफरेंसेस, दोनों में जो भेद है, दोनों में जो फर्क है उसके बारे में बात की है. वुमेन टाइम और मैन टाइम कैसे अलग होता है. So conceptualization of woman time as contrary to clock time and clock time as synonymous with economic rationalism are two of the deleterious results of representation. मतलब उधर बताया है that woman time is not clock time, वो clock time का opposite होता है. जबकि यहाँ पे third one says when the everyday practices of working soul fathers and working soul mothers are carefully examined to explore the conceptualization of gendered time, it is found that carrying time is often more focused on the clock than generally theorized. And clock time has been consistently represented in feminist literature as a masculine artifact, representative of a time is money perspective. मतलब क्या, बाकी सब वुमेन टाइम, मैन टाइम, ये सब के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं. बट पहले एक टाइम तो समझते हैं. व्हाट इज टाइम? टाइम इज क्लॉक टाइम के बारे में हम जब बात करते हैं. सो दैट इज व्हाट इज सेड इन द फोर्थ स्टेटमेंट. Fourth statement properly बताता है that is a good introductory sentence because it says that clock time is consistently represented as a masculine artifact. मतलब घड़ी देखने वाला टाइम जो मैं बताऊं दैट मैंने तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, 3 घंटे के लिए टाइम स्पेंड किया, ये टाइम सिर्फ मेन देखते हैं, वुमेन नहीं देखती. वुमेन केयरिंग टाइम देखती है. ओके, दिस इज व्हाट दे हैव स्टार्टेड ऑफ विथ. लेट्स लुक एट द अदर सेंटेंस दैट कौन सा दूसरा सेंटेंस सेंस बनाता है. The conceptualization of women's time as contrary to clock time and clock time as synonymous with economic rationalism are two of the deleterious results of this representation. मतलब क्या?
कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ वुमन टाइम एज कॉन्ट्रेरी टू क्लॉक टाइम। वुमन टाइम क्लॉक टाइम से अलग होता है, वो कंप्लीटली अलग होता है। ये एक डिलीटेरियस रिजल्ट है इस रिप्रेजेंटेशन का। मतलब रिप्रेजेंटेशन दैट clock time is practical, clock time is economic, clock time is rational, ये एक इफेक्ट है जो वुमेन टाइम में नहीं होता है, ये बताया है फर्स्ट स्टेटमेंट में। उसके बाद वुमेन टाइम पे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। वाइल एवरीडे प्रैक्टिसेस ऑफ वर्किंग सोल फादर्स, हम बाद में मैन टाइम की बात करेंगे, दैट वाइल एवरीडे प्रैक्टिसेस ऑफ वर्किंग सोल फादर्स एंड वर्किंग सोल मदर्स आर केयरफुली एग्जामिन्ड। मतलब एक मिनट, 4 के बाद 1, और why 1 and not, sorry, why 3 and not 2 after 1? Because पहले हम वुमेन टाइम की बात करेंगे, बाद में मैन टाइम की बात करेंगे, और बाद में सेकंड स्टेटमेंट में वी विल कंपेयर द वुमेन टाइम एंड मैन टाइम, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पहले क्लॉक टाइम की बात की, बाद में बताया क्लॉक टाइम इज नॉट वुमेन टाइम, बाद में बताया व्हाट इज मैन टाइम, और फाइनली उन दोनों को कंपेयर किया। So by this logic, 4132 is the right order in which we can place the entire RC parajumble. Okay, I hope you guys understood. As I said, the language is complicated. Language को जितना हो सके उतना ease down करना पड़ेगा अपने ही दिमाग में। ये देखो, look at this one again, इसमें थोड़ा टाइम लो and start understanding what they have said. यहाँ पे हमें क्या बताया है, that living things, animals and plants typically exhibit correlational structure. Correlational मतलब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा related होता है structure. Adaptive behavior depends on cognitive economy, treating objects as equivalent. The information we receive from our senses from the world typically has structure and order and is not arbitrary. To categorize an object means to consider it equivalent to other things in that category and different along some salient dimensions from things that are not. Okay? तो आई सजेस्ट दैट हम कॉग्निटिव इकोनॉमी, सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है दैट टॉक्स अबाउट कॉग्निटिव इकोनॉमी अडेप्टिव बिहेवियर, वो एक अच्छा सा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है बिकॉज वो एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा है हमें। अडेप्टिव बिहेवियर डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव इकोनॉमी, ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या, अगर मैं किसी चीज को बोलता हूँ दैट मैं रोहन जैसा हूँ, कौन से बेसिस पे हूँ, मैं रोहन जैसा हूँ बिकॉज रोहन भी लड़का है, मैं भी लड़का हूँ, मैं भी 27 साल का, रोहन भी 27 साल का, मैंने भी 11-12 साइंस पढ़ा था, रोहन ने भी 11-12 साइंस पढ़ा था। हम बेसिकली कैटेगरी में स्टूडेंट्स जब लोगों को डाल देते हैं, दैट इज व्हेन वी आर लुकिंग एट द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड नॉट एट द डिफरेंसेस। और ये बताया है सेंटेंस 2 के बाद सेंटेंस 4 में। सो दैट इज वाई सेंटेंस 2 and 4 वो अकॉर्डिंगली बैठ जाते हैं। देन वी हैव टू लुक एट 1 and 3. Living things, animals and plants typically exhibit correlation structure, but correlation के बारे में अब तक कुछ बात नहीं की है, तो हमें देखना पड़ेगा वो एक नया कंसेप्ट है या क्या है। The information we receive from our senses is not arbitrary. अगर थर्ड सेंटेंस का बीच वाला पार्ट स्किप कर दे तो इन्फॉर्मेशन दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस आर नॉट आर्बिट्ररी, वो एक रीजन की वजह से आते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली रिलेटेड। तो हमें देखना पड़ेगा 3 और 1 में से कौन सा थोड़ा सा एटलीस्ट हल्का फुल्का रिलेटेड है 2 and 4 से। तो कॉग्निटिव इकोनॉमी, अगर कॉग्निशन की बात करें तो मतलब बेसिकली कॉग्निशन मतलब मैं कैसे चीजों को परसीव करता हूँ, कैसे चीजों को समझता हूँ, कैसे चीजों को एक्सपीरियंस करता हूँ। सो आई गेस 2 and 4 के बाद कॉग्निशन बस 3 में बात की है, और 1 इज टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू ऑल टुगेदर। तो बिकॉज 1 इज नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड, तो वो नया टॉपिक चालू कर रहा है। आई विल प्लेस इट एट द एंड। वो कंक्लूड नहीं कर रहा है, वो एक नई चीज ही चालू कर रहा है। सो दैट इज व्हाई द ऑर्डर दैट आई वुड यूज हियर इज 2 4 3 1। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये समरी वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज इज एन ऑटोपोमॉर्फी। सच बोलो, मुझे नहीं पता मीनिंग क्या है ऑटोपोमॉर्फी का, जाने दो, बाद में देखेंगे। Found only in our lineage and not shared with the other branches of our group, such as primates. We also have no definitive evidence that any species ever had language. However, it must be noted straight away that language is not monolithic entity, but rather a complex bundle of traits that must have evolved over a significant time frame. Moreover, language crucially draws on aspects of cognition that are long established in the primate lineage, such as memory. The language faculty as a whole comprises more than just the uniquely
लिंग्विस्टिक फीचर्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमंस के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। बट ऐसा नहीं है दैट लैंग्वेज एक यूनिक फीचर है या फिर अपने आप में एक फीचर है। जैसे मैं बोल दूं दैट मोबाइल में कैमरा है, तो कैमरा सिर्फ अपने आप के लिए, मोबाइल सिर्फ सेकेंडरी कैमरा, सिर्फ वो वीडियो और फोटो खींचने के लिए नहीं होता ना। उसके लिए और क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सिक्योरिटी के लिए काम आता है, मोबाइल लॉक अनलॉक करने के लिए काम आता है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी काम करता है, दैट मैं मेरे फोन से कितना दूर या नजदीक हूँ जब मैं कॉल पे हूँ तब। तो लैंग्वेज भी वैसे ही अलग अलग चीजों में रूटेड है, वन ऑफ विच इज कॉग्निटिव एबिलिटी एंड मेमोरी। मेमोरी प्राइमेट्स में है, मतलब बंदरों में मेमोरी है, बट वो लैंग्वेज नहीं कर पाए, वो लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाए। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन द सेंटेंस। लेट्स ट्राई टू सी अब कौन सा वाला प्रॉपरली बैठता है। लैंग्वेज अ डिराइव्ड ट्रेट ओनली इन ह्यूमंस हैज इवॉल्व ओवर टाइम एंड इन्वॉल्व्स मेमोरी। मेक सेंस। फर्स्ट वाला सही तो है, गलत तो नहीं बोल रहा है। लेट्स लुक एट द अदर्स। लैंग्वेज इज अ डिस्टिंक्टिव ह्यूमन फीचर एंड देयर इज नो एविडेंस एग्जिस्टिंग लैंग्वेज इन एनी अदर स्पीसीज। ये भी ठीक है, बट इसमें वो मेमोरी और वो सब के बारे में बात नहीं कर रहा, दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन मेमोरी एंड अदर। Language evolved with linguistic features depending on features of cognition such as memory. ये भी सही है। Language evolved with linguistic features, मतलब linguistic features सिर्फ लैंग्वेज नहीं होता ना, बॉडी लैंग्वेज और वो सब भी आ गया अंदर। सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी आ गया, लिंग्विस्टिक फीचर्स का पार्ट वो भी हो जाता है। बिल्डिंग ऑन फीचर्स ऑफ कॉग्निशन सच एज मेमोरी, ये सही लग रहा है, दैट लैंग्वेज डेवलप हुआ है मेमोरी और वो सब के साथ डेवलप हुआ है, साथ मिलके। लैंग्वेज इज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म एंटिटी बट द एंड रिजल्ट ऑफ अ, कहीं भी ऐसा नहीं बताया दैट लैंग्वेज इज एन एंड रिजल्ट। इन द एंटायर पैराग्राफ लैंग्वेज इज एन एंड रिजल्ट नहीं दिखाया है। वी हैव जस्ट सेड लैंग्वेज हैज डेवलप्ड आउट ऑफ समथिंग एल्स। तो शायद लैंग्वेज और इवॉल्व हो किसी और चीज में, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो एंड रिजल्ट तो नहीं है ये बोल के फोर्थ स्टेटमेंट में मिटा दूंगा, मतलब इट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। द ऑप्शन इज 1 and 3, मतलब ए एंड सी। लेट्स सी कौन सा वाला ज्यादा अच्छे से बैठता है। Derived trait only in humans has evolved over time and involves memory and based on cognition features of cognition such as memory. Yes. So option A और option C में has, बाकी सब तो मुझे ठीक ही लग रहा है, बट एंड में देखेंगे तो has evolved over time and involves memory, जबकि यहाँ पे क्या है, फीचर्स ऑफ कॉग्निशन सच एज मेमोरी, मेमोरी प्लस अदर फीचर्स ऑल्सो, और फीचर्स भी है, जबकि यहाँ पे सिर्फ मेमोरी की बात की है और किसी की बात नहीं की है। एंड हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इन्वॉल्व्स मेमोरी, तो और भी चीजें हैं ना, इट्स नॉट जस्ट मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉग्निशन एबिलिटी, बाद में बॉडी लैंग्वेज, तो ये सब भी आ जाता है। सो फॉर दैट रीजन आई विल से सी इज द बेटर ऑप्शन अमंग ए बी सी डी। ओके, especially C is the better option among A and C. So that is what I feel. Option C is the right answer. बाद में the passage given by four alternate अच्छा ये भी समरी वाला ही है। सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये थोड़ा बड़ा है, टेक योर टाइम, रीड इट, थोड़ा 1 मिनट देके इसे पढ़ लो प्रॉपरली। तो एज आई सेड, आई एम कोरिकोड ने ये बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश बनाई है। तो सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन स्ट्रगल टू मोबिलाइज सपोर्टर्स फ्रॉम अलाइड मूवमेंट्स इन देयर एफर्ट्स टू अचीव क्रिटिकल मास। पहला ही स्टेटमेंट इतना तगड़ा दिया है। सो व्हाट आई रेकमेंड, मैं जब ये इंग्लिश पढ़ता हूँ एंड व्हेन आई सी कि किधर तो बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश यूज की है, दैट इज वेयर आई यूज अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अपने पास है तो व्हाई नॉट यूज इट। I'll show you how to understand this better in the start, at least when you're new. तो for when you are trying to learn, उसके लिए चैट जीपीटी इज अ ग्रेट टूल जो हम यूज कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। मैंने यहाँ पे एक सिंपल उसको प्रॉम्प्ट दिया हुआ था दैट लिसन यू हैव टू सिंप्लीफाई अ पैराग्राफ, यूर दैट आई कैन यू डू इट। उसने ये किया, लाइक यूर इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द पैराग्राफ। मैंने उसको पैराग्राफ भेजा, उसने एक्सप्लेन किया। आई टोल्ड देम टू मेक इट इवन ईजियर, समथिंग दैट कैन बी एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स इजीली, ऐसा मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया। उन्होंने ये कॉम्प्लिकेटेड वाले पैराग्राफ को इतना इजी पैराग्राफ बना दिया। तो यहाँ पे वापस करेंगे, यहाँ पे हम उसको बता देंगे तो वो सिंपली उसे सिंप्लीफाई कर देगा हमारे लिए। ओके, चल। सो ये वाला पढ़ो एंड यूज चैट जीपीटी लाइक दिस टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश मच सिंपलर। पता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, पर तुम्हें समझना पड़ेगा ना। तो एक बार ये खुद से पढ़ो जो हमें दिया हुआ है, एंड बाद में ये सिंप्लीफिकेशन पढ़ो, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर। ओके, चल, लेट्स गो टू द शीट।
आई एम सॉरी, मैं शायद मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। तो मैंने चैट जीपीटी पे गया एंड आई सेड द प्रॉम्प्ट दैट लिसन यू हैव टू सिंप्लीफाई अ पैराग्राफ। उसने सिंप्लीफाई किया, मैंने उसे बोला और सिंपल कर दो, तो उन्होंने और सिंप्लीफाई करके दिया। सो दैट इज वेयर मैंने अगर ये वाला जो है प्रॉम्प्ट, ये वाला पैराग्राफ भेजा एंड ये पैराग्राफ उसने सिंप्लीफाई कर दिया। सो दिस इज अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश टॉपिक्स और वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश पैराग्राफ्स विच आर गिवन इन द मॉक सॉल्विंग्स। ये तुम कर सकते हो इन द स्टार्ट, सो तुम्हें समझने लगेगा। ओके, चल लेट्स गो टू दिस बैक। तो अब उन्होंने जो वहां बताया था वो एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे उन्होंने क्या बताया, दैट सोशल मूवमेंट की वजह से बेसिकली हाइब्रिड एंटिटीज, देर आर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने पास्ट एंटी वॉर मूवमेंट में पार्ट लिया था, वो लोग हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा जा रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 9/11 का। 9/11 के बाद जो लोग एंटी वॉर एक्टिविटीज में पार्ट थे, वो वाले लोगों को हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा अच्छा रोल मिला, उनको सेंट्रल पोजीशंस मिला। और हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसे लोगों को हायर करती है, वो ऑर्गेनाइजेशंस फाइनली ग्रोथ ज्यादा अच्छा करती है। वो उनके पास पावर ज्यादा होता है और उनका प्रेस्टीज, उनका रिस्पेक्ट ज्यादा होता है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दिस एंटायर पैराग्राफ। चल, post 9/11 studies show that people who are involved in non anti war movements are likely to join hybrid organizations। सही है। It is not that people are likely to join, but it is that the companies hire people who were in anti-war movement। तो पहला वाला इसलिए मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है। इट इज नॉट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट यू कैन गिव फॉर द पैसेज, दैट इज hybrid organizations attract individuals that are deeply involved in anti-war movement। ऐसा भी नहीं दिया है, ऐसा उन्होंने बताया है दैट पीपल हु आर इवन डीपली इन्वॉल्व के बारे में कुछ बात नहीं की है उन्होंने। एंड दैट इज वाई डीपली इन्वॉल्व का मैं कुछ बता नहीं सकता, दैट उन्होंने डीपली इन्वॉल्व लोगों को ही उठाया है। लेट्स गो टू द थर्ड वन। मोमेंट्स दैट वर्क टुवर्ड्स मूवमेंट्स दैट वर्क टुवर्ड्स सोशल चेंज ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू मोबिलाइज। नहीं, ये तो गलत है, उल्टा, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है, पूरे पैराग्राफ का एग्जैक्ट ऑपोजिट बता रहे हैं। एंड फाइनली फोर्थ, organizations with hybrid entities are able to mobilize individuals with different points of views। yes, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज मतलब वो एंटी वॉर मूवमेंट वाले लोगों को भी लेते हैं और जो नॉन एंटी वॉर मूवमेंट वाले हैं उनको भी लेते हैं। सो दे आर एबल टू मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब हायर, दे आर एबल टू मूव हायर, इन्वॉल्व इन देयर एडमिशन, इन्वॉल्व इन देयर ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट बराबर है, दैट वो वैसे लोगों को पिकअप करते हैं, बट सिर्फ वैसे लोगों को पिकअप नहीं करते। तो चलो, सो दैट इज वाई ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स गो, लेट्स मूव अहेड। ये वाला आरसी, टेक टाइम, रीड दिस एंटायर आरसी, इट्स अ वेरी वेरी गुड आरसी। ओके, तो ये वाले पैराग्राफ में एज यू कैन रीड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिकली उन्होंने क्या बताया है, दैट अराउंड द वर्ल्ड जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस होती है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिस होती है, वो रूरल एरियाज में, थोड़े नॉन अर्बन एरियाज में शिफ्ट करते हैं। उसके थोड़े फायदे होते हैं। दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें कम प्राइस में अच्छा लेबर मिल जाता है, यू विल फाइंड गुड पीपल, क्योंकि अ पर्सन फ्रॉम राजस्थान में जयपुर या उदयपुर, दे माइट चार्ज लेसर देन द पर्सन हु इज फ्रॉम मुंबई और दिल्ली, राइट। तो वही लॉजिक इन्होंने यहाँ पे बताया है। बट इसकी वजह से और एक फायदा होता है, कंपनी को नहीं, वो एरिया को। वो एरिया में प्राइवेट कंपनीज भी आना चालू कर देती है जब गवर्नमेंट ऑफिस मूव होती है तब, और वो एरिया एक अच्छा सा हब बन जाता है वो पर्टिकुलर चीज के लिए। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है दैट कहीं तो डिजीज कंट्रोल, या अमेरिका में उन्होंने डिजीज कंट्रोल सेंटर को सेटअप किया अटलांटा में, वॉशिंगटन डीसी में नहीं, जिसकी वजह से अब अटलांटा हेल्थ सेक्टर रिसर्च एंड बिजनेस का एकदम हब बन गया है। सो दैट मीन्स वो जो एरिया है अटलांटा, उसका भी फायदा हो गया। सो व्हेन company shifts their base to this a rural area, that is when it is also beneficial for the rural area or the less urban area। okay, so that is what they have explained in the entire thing। इसके आगे और भी चीजें हैं, तो हम जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे एक्सप्लेन कर, वैसे देखते रहेंगे। According to the passage, colonial powers located their capitals to showcase their power, नहीं, where they had densest population, नहीं, उल्टा बताया है, that dense population में नहीं कर रहे थे, based on political
एक्सपीडियंसी नहीं, एंड फाइनली प्रमोट देयर ट्रेडिंग इंटरेस्ट। सो प्रमोट देयर ट्रेडिंग इंटरेस्ट, यस, बिकॉज अगर वहां पे हम रूरल एरिया में डालेंगे तो बाकी सारे लोग भी वहां आएंगे, हम उनसे भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो वहां के लोग हैं उनका भी इनकम बढ़ेगा तो मेरा फायदा बढ़ेगा। जैसे ही इनकम लोगों की बढ़ती है एक्सपेंसेस बढ़ता है, तो जो कॉलोनियल पावर्स है वो टैक्सेस ज्यादा लगा सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The dilemma mentioned in the passage refers to keeping government agencies in large cities with good infrastructure or moving them to a remote area. There is no dilemma that उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, उनको उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए रूरल एरियाज में शिफ्ट नहीं कर रहे। तो ऑप्शन वन इज रॉन्ग। Concentrating on decongesting large cities or focusing on boosting employment in relatively larger cities. Boosting employment in relatively smaller cities is the problem. कि स्मॉलर सिटीज में एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना है, तो ऑप्शन बी उल्टा बोल रहा है। ऑप्शन थ्री, encouraging private enterprises to relocate to smaller towns or incentivizing them in order to keep government cost in those town low. नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ नहीं बताया दैट उनको इंसेंटिवाइज करे या ना करे। वो खुद से, अगर गवर्नमेंट ऑफिस शिफ्ट होती है तो प्राइवेट ऑफिस खुद से शिफ्ट हो जाते हैं, वो खुद वहां पे भी लोगों को फाइंड करने लगते हैं। सो देयर इज नथिंग रिलेटेड टू इंसेंटिवाइजिंग हैपनिंग। Relocating government agencies to boost growth in remote areas with poor amenities or to a relatively larger city with good amenities. यही तो प्रॉब्लम है, दैट हम छोटे एरिया में जाए या ना जाए, एम्यूनिटीज कम है बट कॉस्ट भी ज्यादा है, और स्मॉलर एरियाज में एम्यूनिटीज कम है बट कॉस्ट भी कम है। सो दैट इज द डिलेमा। ओके, ऑप्शन टू, क्वेश्चन टू का राइट आंसर इज ऑप्शन डी। People who support decentralizing government functions are least likely to cite which of the following reasons for their views. वो ये कौन सा, हु सपोर्ट डिसेंट्रलाइजिंग, जो लोग बोलते हैं दैट गवर्नमेंट को छोटे एरियाज में, रूरल एरियाज में जाना चाहिए, वो कौन सी चीज नहीं बोलेंगे, व्हाट इज द रीजन दैट दे विल नॉट गिव। ये हो जाता है डबल नेगेटिव, ये उन्होंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया है। ओके, मोर इंडिपेंडेंस कुड बी एंजॉयड बाय रेगुलेटरी बॉडीज, दिस इज नॉट अ फायदा, दिस इज अ नुकसान, तो वो ये रीजन तो नहीं बताएंगे। ओके, पॉलिसी मेकर्स में बेनिफिट फ्रॉम फ्रेश थिंकिंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिसी मेकर्स फ्रेश थिंकिंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट के बारे में पूरे पैराग्राफ में किधर भी नहीं बोला है, खुद के मन से हम नहीं निकाल सकते। इट रिड्यूसेस एक्सपेंसेस एज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड सैलरीज आर लोअर इन स्मॉलर सिटीज, दैट इज अ फायदा। अगर ये फायदे की बात है तो वो लोग क्यों बताएंगे, मतलब वो लोग ये बात बताएंगे ना, यहाँ पे उन्होंने बताया है वो कौन सी चीज नहीं बताएंगे। दे आर ऑपोजिट, दे आर अपोजिंग विच थिंग। It could weaken the nexus between bureaucrats and media in the capital. Yes, they are opposing this. They are saying that ये एक फायदा नहीं, ये एक नुकसान है। That जब समझो अगर बीएसएनएल या फिर डब्ल्यूएचओ या फिर समझो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर मैं शिफ्ट कर दूं नागपुर में और मुंबई, तो मुंबई का जो मीडिया है वो नागपुर तक जा नहीं पाएगा टू गेट ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक्स, उनमें जो भी मूवमेंट हो रहा है वो। सो दिस विल वीकन द नेक्सस, वीकन द नेक्सस मतलब द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो वीकन हो जाएगा अगर हमने उनको वहां शिफ्ट किया तो रूरल एरिया में। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ऑप्शन फोर मेक्स सेंस एंड दैट इज आवर आंसर। The long pedigree of aim to shift civil servants to improve their living standard. लॉन्ग पेडिग्री का मतलब, पेडिग्री इज अ प्योर ब्रीड, डॉग फूड नहीं, इट इज नेम्ड आफ्टर हैविंग अ वेरी प्योर लीनिएज, दैट पहले से चलती आ रही प्रथा, पहले से चलते आ रहे एकदम प्योर थिंग, दैट इज व्हाट इज पेडिग्री, दैट्स व्हाट पेडिग्री मींस। इट इज नॉट अ न्यू आइडिया एंड इट हैज बीन ट्राइड इन द पास्ट। परफेक्ट, मतलब पेडिग्री का मतलब वही, दैट नई चीज नहीं है, काफी टाइम से चलती आ रही है और इट इज अ सक्सेसफुल थिंग, इट इज अ प्योर थिंग। ऑप्शन वन सूट्स परफेक्टली, बाकी सब देख लेते हैं। इट इज कॉमन प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड, नहीं, गलत। पेडिग्री मतलब पास्ट की ही बात करता है। इट इज सपोर्टेड बाय पॉलिटिशियन एंड रूलिंग एंटिटीज, नहीं। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू अचीव इट्स इंटेंडेड आउटकम्स, नहीं, पास्ट के बारे में बात नहीं की है। ऑप्शन वन इज द राइट वन। एंड क्वेश्चन फाइव, दैट इज according to the author, relocating government agencies has not always been a success for all of the following reasons except, this is a triple negative। तो ये समझो, according to author, relocating government agencies
has not always been a success for the following reasons except. मतलब not been a success का मतलब been a failure. Relocating government agency is a failure for all reasons except. मतलब government agencies को relocate करना is a winner for this reason. So what is the good benefit of relocating government agencies? वो लोग बस वही पूछ रहे हैं. They are just trying to ask what is the benefit of relocating government agency. Okay. Sorry, what is not the benefit? What is not the benefit of relocating government agencies? That is what they are trying to say. Chalo. The difficulty of attracting talented and well-skilled people in more remote areas. ये already दिया हुआ है that ये चीज एक benefit नहीं है, ये चीज नुकसान है, तो ये नहीं. We have to find the thing that is except, वो चीज नहीं include होती. Increased मतलब ये चीज जो भी आंसर है वो पैराग्राफ में मेंशन नहीं होना चाहिए. इंक्रीज्ड एवेन्यूज ऑफ करप्शन अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी. ये तो उन्होंने बताया है दैट करप्शन हो पाएगा बिकॉज मीडिया नहीं पहुंचेगा तो करप्शन हो जाएगा. सो दैट इज ऑप्शन सी इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द पैराग्राफ. हाई स्टाफ लॉसेस एज पीपल में नॉट बी प्रिपेयर टू मूव स्मॉलर टाउन्स. यस, अगर मैं ऑफिस शिफ्ट कर दूं तो बड़े शहर वाला आदमी छोटे शहर में नहीं जाएगा, तो मेरा स्टाफ निकल जाएगा, दे विल लीव द जॉब. Even that is a thing that is mentioned in the passage. Option 1, a rise in pollution levels and congestion in the new locations. उन्होंने उल्टा बताया है दैट वहां पे ऑलरेडी बहुत सारा जगह है, वो जगह यूटिलाइजेशन होना चालू हो जाएगा. सो ऑप्शन ए का उल्टा वो पैसेज में बता रहे हैं. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. दिस इज अ ट्रिपल नेगेटिव. ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस, इफ यू फाइंड दिस क्वेश्चन इन द कैट, छोड़ दो, बिकॉज ट्रिपल नेगेटिव में घुसना तुम्हें समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, और उसके ऊपर से अगर एक भी गलती हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड आरसी. ये वाला आरसी प्रॉपरली पढ़ लो. ये वाला पैराग्राफ, दिस इज अनदर. ये पैराग्राफ रीड करने में काफी, ये पैसेज रीड करने में इजी था, समझने के लिए इजी था. इन्होंने क्या बताया है दैट बहुत सारी रीजंस की वजह से जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जैसे ताजमहल हो गया या कुतुब मीनार हो गया, चार मीनार हो गया, ये सारी चीजों को काफी डैमेज हो जाता है. तो इसमें क्या हो रहा है, गूगल और एक कंपनी सायार्क करके, ये दोनों कंपनीज ये सारे लोकेशन का 3D मॉडल्स बना देती है, सो दैट जो लोग विजिट ना करें वो लोग भी पूरा मॉडल अच्छे से देख सके, पूरी जगह अच्छे से देख सके. बट द प्रॉब्लम दैट समबडी स्टेट्स, को एक प्रोफेसर है वो वटरल करके, वो बोलते हैं दैट द दिस इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज वो जो राइट्स है ये प्रॉपर्टीज के, ये जो इमेजेस के राइट्स है वो सायार्क अपने पास रख लेता है, बट विच इज नॉट फेयर, क्योंकि वो एक्चुअली उनका पार्ट नहीं है, वो उनका प्रॉपर्टी नहीं है. वो बोल रहे हैं दैट वो समाज सेवा कर रहे हैं, तो उनको राइट्स अपने पास नहीं, वही कंट्री को देने चाहिए. बिकॉज आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है दैट वो कंट्री खुद वो इमेजेस यूज ना कर सके अपने म्यूजियम्स में, बिकॉज उनका ओनरशिप सायार्क का है और वो कंट्री का नहीं है. ओके, तो इस बारे में पूरे पैसेज में बात की है. लेट्स चेक द क्वेश्चंस. Based on his views mentioned in the passage, one could best characterize Dr. Vatral as प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज सॉरी, हाँ, वटरल और वैट्रॉल जो भी है. अपोज टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ही इज नॉट अपोज टू यूज ऑफ इट. उसे प्रॉब्लम बस ये है दैट ये राइट्स कंपनीज के पास नहीं, कंट्रीज के पास होने चाहिए. डिसमिसिव ऑफ ले पीपल, नहीं. अनईजी अबाउट मार्केटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल इमेजेस फॉर कमर्शियल यूज बाय सच फिल्म्स, नहीं. ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम. Critical about the links between non-profit and commercial tech platform for distributing archaeological images. Yes, he is critical. वो बोल रहे हैं that ये उनके हिसाब से गलत है because आगे जाके problems हो सकती है, उनको शक है उस पे. So option D is the right one. By digital colonization, critics of SciArc Google project are referring to the fact that SciArc and Google have been scanning images without, नहीं. The scanning process can damage delicate, नहीं. Damage का किधर बात ही नहीं किया है. Countries where do not own the scanned copyrights. Yes, countries where the scanned sites are located do not own the scanned copyrights because वो copyrights पड़े हैं सायार्क और गूगल के पास. So that is why उनको प्रॉब्लम है. डिजिटल कोलोनाइजेशन बोल रहे हैं इनको, कि जैसे कोलोनाइज किया था हमें ब्रिटिशर्स ने, तो वो हमारी चीजों को अपनी चीजें बता रहे थे. तो यहाँ पे वो वैसे ही वो स्कैन्स जो
कुतुब मीनार का स्कैन है वो इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं, वो गूगल की प्रॉपर्टी, ऐसा बता रहे हैं, विच इज कोलोनाइजेशन जैसा। Which of the following, if true, would most strongly invalidate Dr. Vattel's objections? Google takes down advertisements on its website hosting. ये सही होता अगर उन्होंने बोला होता that गूगल सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा है, बट इफ यू नोटिस हियर उन्होंने क्या बताया है, मटेरियल एक्सेस ब्राउज इट फिल्ड गूगल टू प्रमोट गूगल, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टिजमेंट्स एंड ड्राइविंग ट्रैफिक। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं, वो ट्रैफिक भी ड्राइव कर रहा है, मतलब गूगल लोगों को अपने पास खींच रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है। सो दैट इज वाई सिर्फ एड्स बोलना गलत है, ऑप्शन ए गलत है। देयर इज अ बैन ऑन सायाक स्कैनिंग, नथिंग लाइक दैट इज स्टेटेड। Sayark would not own the copyright of on scanned images of the archaeological sites. ये ठीक है, बट इवन इफ दे डू नॉट ओन द कॉपीराइट, कॉपीराइट भी अगर कंट्री वालों के पास हो, बट फिर भी अगर उन लोग को जाना पड़ रहा है गूगल पे ही देखने के लिए, इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम, इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम दैट डॉक्टर वैटल हैज। Sayark uploads its scanned documents of archaeological sites onto museum websites only. Yes, अगर वो सिर्फ म्यूजियम की वेबसाइट पे ही अपने स्कैन्स डाले तो लोगों को गूगल पे भी नहीं जाना पड़ेगा स्कैन्स देखने के लिए। अगर मुझे जाना है इंडिया की मॉन्यूमेंट, इंडिया के मॉन्यूमेंट को देखने के लिए ऑनलाइन, तो मैं इंडिया की ही साइट पे जाऊंगा, आई विल गो टू इंडियन म्यूजियम साइट जो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो दैट इज वाई ऑप्शन डी फिट्स फाइन। ओके, Dr. Thompson's view on SCI-ARC owning the copyright of its digital scans of archaeological sites is akin to मतलब क्या, मैंने स्कैन किया कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का स्कैन मेरी प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हें कुतुब मीनार का स्कैन अपनी वेबसाइट पे दिखाना है तो तुम्हें मुझसे मांगना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इज रॉन्ग। तो टूरिस्ट एंड अपलोडिंग फोटोज नहीं। द सीजिंग ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स बाय द वेस्टर्न म्यूजियम, यस। जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में दैट कोहिनूर हीरा तो इंडिया का था बट यूके लेके गया, अब वो लोग अपना बताते हैं, वैसा ही सिमिलरली वो ऐसा बता रहे हैं दैट वेस्टर्न म्यूजियम ने इजिप्ट का आर्टिफैक्ट चुरा लिया, इट इज सिमिलर टू दैट ओनली, दैट तुम हमारी प्रॉपर्टी की स्कैन को अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हो, ये गलत बात है। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। Which of the following statement is least likely to be used by companies that digitally scan cultural sites? Again, इसमें डबल नेगेटिव है। डबल नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब क्या, जो डिजिटली स्कैन करती है वो कंपनीज इनमें से कौन सी चीज नहीं बोलेगी। ओके, लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय कंपनीज दैट डिजिटली स्कैन कल्चरल साइट्स। तो तुम्हें ढूंढना है कौन सी चीज कंपनी ने नहीं बताई है, मतलब चारों ऑप्शंस में से तीन चीजें कंपनी ने बात की है और एक चीज कंपनी ने नहीं बताई है। ओके, इट enables people who cannot physically visit these sites to experience them, which is true, हमें पैसेज में बताया है। It helps the preserve it helps to preserve precious images in case the sites are damaged or destroyed. इसके लिए हमें एग्जांपल दिया है, सीरिया में बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी, सो वो एग्जांपल दिया था, तो सेकंड वाला भी सही है। It allows a large corporation to project itself as a protector of culture. इसका ही तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर थॉमसन या फिर डॉक्टर थॉमसन ही वो बोलते हैं दैट बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस अपने आप को मसीहा बताते हैं, सो दैट इज व्हाट दे हैव अ प्रॉब्लम। तो एक डिजिटली स्कैनिंग कंपनी वो खुद अपनी बुराई करेगी क्या, नहीं करेगी। सो दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर दैट दे विल नॉट स्पीक अबाउट, दे आर लीस्ट लाइकली टू स्पीक अबाउट दिस। ऑप्शन सी के बारे में बात नहीं करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू एलआर। लेट्स जंप टू एलआर। एलआर पजल देखते हैं। अरे आगे जा, हाँ। In the table below, check marks indicate all languages spoken by 5 people. PQRST, 5 लोग हैं PQRST, और इनकी अलग अलग लैंग्वेजेस है। अरबिक, बास्क प्रोबेबली, ABCDEF, बेसिकली ABCDEF लैंग्वेजेस हैं उनकी। एंड बाद में नीचे दिया हुआ है these 5 people form 3 teams, T1, T2, Team 3. Each team has 2 or 3 members. The team is said to speak a particular language if at least one of the members speak that language. The following facts are known. Each team speaks exactly 4 languages and has the same number of members. उसके बाद English and Chinese are spoken by all 3 teams. All 3 teams, so T1, T2, T3. Let's just make a table. T1, T2, and T3.
इसमें कौन कौन होंगे वो नहीं पता, बट हर एक टीम लैंग्वेजेस वाइज स्पीक करती है ए, ई एंड सी। तो सी एंड ई करती है स्पीक हर एक टीम। इसका मतलब हर टीम में पॉला या फिर टेरेंस में से कोई तो होगा, क्योंकि चाइनीज है। और पॉला, क्वेंटिन और सैली, ये तीन में से कोई तो एक होगा ही टीम में मिनिमम। ओके। बी एंड एफ एग्जैक्टली बाय टू टीम्स, एंड द अदर लैंग्वेजेस आर एग्जैक्टली बाय वन टीम। सो चाइनीज बाय थ्री, इंग्लिश बाय थ्री, बी एंड एफ बाय टू टू, एंड डच एक बार आता है और अरबिक एक बार आता है। ओके। नन ऑफ द टीम्स इंक्लूड बोथ क्वेंटिन एंड रॉबर्ट, तो क्यू आर साथ में नहीं बैठते। पी एंड एस आर टुगेदर इन एग्जैक्टली टू टीम्स, दो टीम्स में पी एस साथ में है। रॉबर्ट इज इन टीम वन, तो आर इज इन टीम वन, एंड क्वेंटिन इज इन टीम थ्री। क्वेंटिन इज इन टीम थ्री। अगर क्वेंटिन टीम थ्री में है तो ये डच और इंग्लिश, तो डच भी बोलती है ये वाली टीम। दिस टीम ऑल्सो स्पीक्स डच। बाद में रॉबर्ट ये वाली टीम में है, तो रॉबर्ट की वजह से ये टीम अरबिक और फ्रेंच भी बोलती है, अरबिक एंड फ्रेंच। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोई भी और लैंग्वेज बोलता है वो ये टीम में नहीं आ सकता। बास्क वाला, तो सैली कैन नॉट बी इन दिस टीम। पॉला एंड सैली आर एग्जैक्टली इन टू टीम्स, इफ सैली कैन नॉट बी हियर तो पॉला सैली यहां पे आ जाएंगे एंड पॉला सैली यहां पे आ जाएंगे। ओके। बिकॉज पीएस दोनों साथ में है, पर सैली यहां पे नहीं आ सकती। सैली कैन नॉट बी इन द टीम। बस डच, डच वाला कोई क्वेंटिन, क्वेंटिन कैन नॉट बी इन दिस टीम, क्वेंटिन तो नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड सीई ए एफ, सीई ए एंड एफ, तो बी वाला कोई भी और डी वाला कोई भी, बी और डी में एक एक जन है, पॉला एंड क्वेंटिन, वो दोनों इन दोनों टीम्स में नहीं आएंगे। गुड। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यूपीएस, क्यूपीएस अगर यहाँ पे है तो ये कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, सीई डी, सी, क्यूपीएस, पी की वजह से आ जाएगा सी और ई, एस की वजह से आ जाएगा बी एंड ई, तो ये बी भी स्पीक करेंगे, एंड क्यू की वजह से आ जाएगा डी एंड डी, तो डी ई तो दिया हुआ है। ग्रेट, वी आर एट अ गुड गुड स्टेज। तो यहाँ पे और देखते हैं और हमें क्या दिया हुआ है। सीई पी एस, Robert is in team one, Quentin in team three. Team speaks four languages and has the same number of people. अब देखते हैं कौन सी लैंग्वेजेस। चाइनीज स्पोकन, चाइनीज इंग्लिश तीन लोगों से स्पोकन है। बास्क एंड फ्रेंच दो दो टीम्स में आते हैं। इफ बास्क एंड फ्रेंच दोनों दो दो टीम्स में आते हैं तो यहाँ पे ही वो दो होने चाहिए, बी एंड एफ। तो मुझे बी वाला कोई ढूंढना पड़ेगा। बी कौन कौन बोलता है, बी बस सैली बोलती है, तो सैली, बी तो यहाँ आ चुका है। तो एफ कौन बोलता है, एफ इज स्पोकन बाय रॉबर्ट और टेरेंस। रॉबर्ट और टेरेंस में से कोई यहाँ पे होगा, पर रॉबर्ट तो यहाँ दिया हुआ है, तो योर इट हैज टू बी टेरेंस, पी एस टी होगा। यहाँ पे सी ई ए एफ, रॉबर्ट क्या बोलता है, रॉबर्ट स्पीक्स ए एंड एफ, तो मुझे ए एंड एफ, सीई वाला कोई चाहिए। चाइनीज में आ जाएगा टेरेंस या फिर पॉला, बट टेरेंस के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, क्वेंटिन रॉबर्ट नहीं है, टेरेंस या फिर पॉला। सो टी और पी होगा यहाँ पे, टी और पी दोनों में से कोई होगा। बट अगर टी आ गया तो टी स्पीक्स सी एंड एफ, ठीक है चल जाएगा, एंड पॉला स्पीक्स सी एंड ई, वो भी चल जाएगा। मुझे तीसरा पर्सन ढूंढने के लिए हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर लैंग्वेजेस हैज द सेम नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, तो यहाँ पे भी तीन जन होंगे, हमें तीसरा आदमी भी ढूंढना पड़ेगा। चाइन, डच एंड अरबिक आर स्पोकन बाय ओनली वन, अरबिक इज ओनली स्पोकन बाय वन, तो रॉबर्ट, अगर यहाँ पे अरबिक है तो यहाँ पे रॉबर्ट है, बराबर है। तो लेट्स जस्ट एलिमिनेट पीपल। रॉबर्ट यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज रॉबर्ट इज ऑलरेडी गॉन, राइट। इफ आई हैव सैली तो सीई एफ में से बी ऐड हो जाएगा, सैली कैन नॉट बी द पर्सन। आई नीड टू पीपल। क्वेंटिन देखते हैं, आर एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, तो आर एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, तो क्यू भी नहीं हो सकता। तो बाय डिफॉल्ट मुझे दो जन चाहिए और दो जन बचे हैं, टी और पी दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। सो आई एम डन।
दिस इज माई ओवरऑल ऑर्डर ऑफ पीपल इन द टीम्स। 3 टीम्स है, T1 में RTP, T2 में PST, T3 में QPS, CEAF, CEBF and CEBD. This is the solution. Let's go ahead. Who among the following is not a member of Team 2? Team 2 का member कौन है? PST. PS and T. तो Quentin is the answer. Option C. Who among the following is a part of exactly 2 teams? Exactly 2 टीम में SQRP में से कौन है? S is in 2 teams. P नहीं आ सकता, R नहीं आ सकता, Q नहीं आ सकता. It is S, Sally. So it will be option A. Who among the 5 people is a member of all teams? Paula is a member of all teams. Apart from the Chinese and English, which languages are spoken by Team 1? CEAF, Arabic and French. Option B, Bombay. ये हो गया हमारा LR सम सॉल्व, LR का सेट पूरा सॉल्व हो गया। DI, लेट्स स्टार्ट विद DI। यहाँ पे हमें क्या दिया है? टू कंपेयर द रेनफॉल डेटा, इंडियन IMD calculated the long period average of rainfall during the period June to August for 16 states. The figure given shows the actual rainfall measured during June to August 19 and June to August 19 and deviations from LPA for respective states in 2018. Each state along with its actual rainfall is presented in the figure. इसका मतलब क्या? अगर ये हम महाराष्ट्र पकड़े, महाराष्ट्र यहाँ दिया हुआ है, महाराष्ट्र 30% दूर है 2018 के LPA से एंड अभी का उसका वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज 1000. सो महाराष्ट्र राइट नाउ इज 130% ऑफ व्हाट इट वाज लास्ट ईयर. तो महाराष्ट्र इन 18 एंड 19 में इट इज 1000 एंड दिस विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 13. 1000 डिवाइडेड बाय 13 770 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा. ओके तो हमें सारे स्टेट्स का उस हिसाब से निकालना पड़ेगा. अभी के लिए करेंगे नहीं, वी विल ओनली फाइंड आउट फॉर द वंस विच वी आर रिक्वायर्ड. जैसे राजस्थान है, राजस्थान यहाँ 300 पे है, 300 से 15, 300 इज 15% हायर देन व्हाट इट वाज. तो राजस्थान इज 300 डिवाइडेड बाय 115. सो ये वाला आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 115, 300 डिवाइडेड बाय 115, 5 into 23, 5 into 60. अच्छा 115% है. हाँ तो 15% ऊपर है. ओके फाइन. हाँ चलो देख लेते हैं. 30% अप, 130, 333. दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 246, 46 के बाद 14, दैट इज 0.5. तो मतलब 250 जितना परसेंट ऊपर है. 250 पहले था, अब 300 है. सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 30% हायर. इसका 30% विल बी 25, 3, 25, 7.5, 750 हो जाएगा. तो 240 ले लेंगे. दैट इज हाउ यू फाइंड द आंसर. हमें राजस्थान की पुरानी और नई वैल्यूज मिलेगी. लेट्स चेक द सम. हमें पूछा क्या है उस हिसाब से ढूंढेंगे. If heavy monsoon is defined as a state with actual rainfall from June to August 19 of 900 mm or more, then approximately what percent of the heavy monsoon states have negative deviation from respective states? मतलब कितने स्टेट्स है जिसमें 900 से ज्यादा की बारिश गिरी है. ये मिजोरम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सिक्किम हो गया, 1, 2, 3, गोवा हो गया 4, बाद में अरुणाचल हो गया 5, केरला 6 एंड मेघालय 7. इनमें से नेगेटिव कितने हैं? ये 1, 2, 3 आउट ऑफ 7 आर नेगेटिव. दैट इज 3/7, 14.28 into 3, 42.86. आंसर इज ऑप्शन सी. मैंने क्या बोला था कल के चैप्टर में? जो डेटा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है वो एक्चुअल में निकालना बहुत इजी होता है, उसे सॉल्व करना बहुत इजी होता है. If a low monsoon state is defined as a state with actual rainfall from 2019 less than 750 mm, okay, then what is the median deviation from LPA as defined in the y-axis of the figure? Median निकालना है. ओके तो पहले सबका डिविएशन निकालते हैं. 750 से लेस वाले कौन से स्टेट्स है वो निकाल देते हैं. चलो लो मॉनसून स्टेट 750 और लेस एंड व्हाट इज द मीडियन डिविएशन. तो पहले लो मॉनसून स्टेट कौन से है वो इधर मार्क करते हैं. 750 या उससे कम MP है, कर्नाटका है,
बाद में गुजरात है 750 से कम, असम है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली एंड मणिपुर। और इनका क्या करना है, व्हाट इज द मीडियन डिविएशन फ्रॉम एलपीए। ओके, तो इनका सारे का डिविएशन निकालेंगे, बाद में उनका मीडियन निकालेंगे। तो लेट्स जस्ट फाइंड द डिविएशन फ्रॉम द मिडिल, सबका डिविएशन निकालेंगे। मणिपुर का -60, दिल्ली का -40, झारखंड का -35, वेस्ट बंगाल -30, असम -10, एमपी का 10, राजस्थान का 15, ये हम मार्क करना भूल गए थे, कर्नाटका का 20, गुजरात का 25। मीडियन वैल्यू मतलब आधी उसके ऊपर आधी उसके नीचे। सो दैट इज यहाँ 1 2 3 4 वैल्यूज नीचे है, 1 2 3 4 वैल्यूज ऊपर है, द आंसर विल बी -10। मीडियन बहुत सिंपल सा लॉजिक है, -10%। What is the average rainfall of all the states that have actual rainfall of 600 meter or less and have a negative deviation from LPM? 600 से कम वाले स्टेट्स जिनका नेगेटिव डिविएशन है उनका एवरेज निकालना है 2019 का। 600 mm और लेस, तो असम, वेस्ट बंगाल 1200 प्लस 400 1600, 1600 प्लस 700 2300, 2300 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ऐसे 5 स्टेट्स है। 2300 divided by 5 will be 460 mm. That is your answer. The LPA of a state for a year is defined as the average rainfall in the preceding 10 years, considering the period for June to August 18. June to August. For example, LPN in 2018 is the average rainfall during 2009 to 2018, and 2019 is the average rainfall during 10 to 19. It is also observed that the actual rainfall in Gujarat in 2019 is 20% more than the rainfall in 2009. LPA of Gujarat in 2019 is closest to। तो हमें देखना है LPA कितने से चेंज हुआ, उसके लिए पहले हमें पुरानी वैल्यू पता करनी होगी। तो पुरानी वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी, गुजरात से। गुजरात का ये साल 600 है, एंड 600 इज 20% मोर देन 2009। सो 2009 का बारिश विल बी 500। सो 2009 में इट वाज 500 एंड 2019 में इट इज 600। ये दिया हुआ है, ये हमने निकाला। अब हमें देखना है फॉर 10 years, 10 साल के पीरियड में अगर मैं एवरेज में से 500, टोटल में से 500 निकाल दूं और 600 ऐड करूं, मतलब आई एम डूइंग अ क्यूमुलेटिव ओवरऑल +100। +100 10 साल का है, तो हर एक साल को एवरेज करेंगे तो +10 मिल जाएगा। सो द एवरेज विल इंक्रीज बाय 10, बट 10 ऑन व्हाट, 10 ऑन द प्रीवियस एलपीए। तो प्रीवियस एलपीए ऑफ गुजरात निकालना पड़ेगा। गुजरात 600 is 20% more than the previous LPA. 20 ना, सॉरी 25, गुजरात इज 25% मोर देन द प्रीवियस LPA। तो 25% मतलब 480। गुजरात का LPA टिल 2018 वाज 480, और अब उन्होंने 600 का बारिश आया। सो नाउ 480 प्लस 10 हो जाएगा एंड द आंसर विल बिकम 490। दैट इज योर आंसर। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस DI। और क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, अब कौन सा? चलो, लेट्स स्टार्ट विथ कौन्स। The average of 30 integers is 5. The average of 30 integers is 5, and there are exactly 20 whose average does not exceed 5. तो मतलब पहले टोटल करते हैं सारे सबका टोटल, 30 into 5 150 equals to 20 which do not exceed 5. What is the highest possible value of these 20 average of these 20 integers? इसका मतलब क्या होगा, टोटल ऑफ दिस 20 का एवरेज जो कम होगा, वो कम वाले एवरेज को हम पकड़ते हैं A, और बाकी जो 10 है बचे हुए उनका एवरेज B पकड़ते हैं। सो 20A प्लस 10B। हमें ढूंढना है ये A का
हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? लोएस्ट वैल्यू तो कितनी भी नीचे हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता है, बट हाईएस्ट वैल्यू लिमिटेशन होता है। ये देखो, तो वी गेट 15 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो अब इनकी वैल्यूज हमें इंटीजर्स ही निकालनी पड़ेगी। द एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स इज 5। ओके, देखते इंटीजर्स जरूरी नहीं है। 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 5, तो वी कैन गेट 2a इक्वल्स टू 15 माइनस b, ऐसे दिया हुआ है। 2a की वैल्यू, अब हम इसमें सारे ऑप्शंस डालना चालू कर देते हैं। लेट्स नाउ यूज दी ऑप्शंस, ये इक्वेशन मिलने के बाद। 4, अगर a की वैल्यू 4 रख दे तो 8 इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स, तो b इज इक्वल टू 7। 4 आ गया तो 7 आ जाएगा। हम ट्राई करते हैं 4 से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? 5, बट इंटीजर्स इसका डज नॉट एक्सीड 5 है, तो 5 ले लेते हैं। 2 इंटू 5 10, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर इसका वैल्यू 5, यहाँ पे हमें बताया है दैट 20 का 5 एक्सीड नहीं होता, तो बाकी 10 का एवरेज अलग होना चाहिए ना। इट कांट बी द सेम एवरेज, वो एवरेज सेम नहीं हो सकता है, वो तो हमें बताया हुआ है। ओके 4.5, 3.5 नहीं, अगर 4 गया तो 3.5 तो ऑप्शन नहीं आएगा मेरे पास। 4.5 ट्राई करते हैं। अगर 4.5, अब सिंपली देखो, अगर 20 लोग 0.5 नीचे है, तो एवरेज करने के लिए 10 लोग 1 ऊपर होने चाहिए। सो दैट इज, इसका वैल्यू हो सकता है ये 20 का एवरेज विल बी 4.5, एंड वो जो 10 बचे हुए हैं उनका एवरेज होगा 6, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। द एवरेज ऑफ दिस 20 इंटीजर्स इज 4.5। In 2010, a library contained 11,500 books of two categories, fiction, non-fiction. तो fiction लेते हैं x, non-fiction लेते हैं y. In 2015, the library contained 12,760 books in these two categories. तो पहले x plus y is equal to 11,500 था. During this period, there was a 10% increase in fiction category. 1.1x plus 1.12y is equal to 12760. ये बेसिकली साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इफ यू जस्ट सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जस्ट वीडियो पॉज करो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करो, मैं भी इधर सॉल्व करता हूँ। सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्विंग है, बस इसको ऐड करना है। इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट 0.2y इक्वल्स टू समथिंग। तो उससे हमें y हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स डू इट। तो ये y की वैल्यू हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मिल गया, y इक्वल्स टू 4500, तो x का वैल्यू विल बी दिस माइनस 4500, सो दैट विल बी 666। श्योर, ये हम इंटू 50 कर रहे हैं ना, 0.02, ये माइनस करेंगे इसमें, अच्छा सॉरी 110 हो जाएगा, माय बैड, सॉरी माय बैड, 110। सो दिस विल बी 5500। इसमें से 5500 माइनस करेंगे, वी विल गेट 6000 एज द आंसर, ऑप्शन सी। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। A cyclist leaves at 10 a.m. and reaches B at 11 a.m. वो यहाँ से निकलता है 10 बजे और 1 घंटे में सामने पहुंच जाता है 11 बजे, टोटल 1 आवर। Every minute a motorcycle leaves A and moves towards B. 45 such motorcycles reach B by 11. देखो, अगर ये 1 मिनट में यहाँ से यहाँ जा 1 घंटे में यहाँ से यहाँ जा रहा है, और मोटरसाइकिल्स कंटिन्यूसली जाती रहती है और सारी मोटरसाइकिल की स्पीड सेम है जैसे यहाँ दिया हुआ है, देन कितनी मोटरसाइकिल्स जाएंगी? यहाँ पे दिया हुआ है 45 सच मोटरसाइकिल्स रीच्ड B by 11। इसका मतलब जब 45 इज द लास्ट मोटरसाइकिल, तो जब ये 45 मिनट्स पास्ट था यहाँ पे, तब लास्ट 15 मिनट में एक मोटरसाइकिल यहाँ से यहाँ पहुंची और 46 मोटरसाइकिल नहीं पहुंच पाई। सो दैट मीन्स मोटरसाइकिल को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 15 मिनट लगता है, 15 मिनट्स। नाउ इफ साइक्लिस्ट डबल हिज स्पीड,
मतलब अगर ये 1 घंटे की जगह पे आधे घंटे में पहुंचे, देखो सबसे आखिरी मोटरसाइकिल को 15 मिनट तो लगती ही है पहुंचने के लिए, तो जब ये आधे रास्ते पे होगा 15 मिनट, तब आखिरी मोटरसाइकिल निकलेगी। पर जब आधे 15 मिनट पे है तब तक कितनी मोटरसाइकिल्स निकली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15। 15 मोटरसाइकिल्स निकली, 15 मोटरसाइकिल्स एग्जैक्टली पहुंच जाएगी। सो आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव अहेड। जॉन जॉग्स ऑन अ ट्रैक ए 6 kilometers per hour. Mary jogs on track B at 7.5 kilometers per hour. Total length of A and B is 325 meters. तो A और B का लेंथ पकड़ लेते हैं। A और B सिंपल, A प्लस B इज इक्वल टू 325 मीटर। ये मीटर में दिया है तो इसका भी स्पीड हम मीटर्स में कर देंगे, मीटर्स पर सेकेंड में। 6 × 5/18 दैट इज 5/3 मीटर्स पर सेकेंड। 7.5 × 5/18, 3 × 6, 3 × 2.5, 2.5 × 5, 12.5, 12.5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, वैसा का वैसा रखते हैं। सो 12.5 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज दी ओवरऑल स्पीड, ओके, ऑफ मैरी। आगे बढ़ते हैं, मैं ये इरेज कर देता हूँ। The total length is covered this much. John makes 9 rounds of track A. Mary makes 5 rounds of track B. तो जॉन को ट्रैक ए कवर करने में कितना टाइम लगेगा? ही विल टेक ए डिवाइडेड बाय 5/3 बिकॉज ये उसकी स्पीड है, तो 3A/5। एंड मैरी को 5 राउंड खत्म करने के लिए कितना टाइम, इसको 9 राउंड खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? दिस इंटू 9 दैट इज 27A/5। मैरी को 5 राउंड खत्म करने हैं बी के, और उसका स्पीड क्या है? 6/12.5, सॉरी 12.5/6, तो वो उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6/12.5, राइट? तो हम इसको ले लेंगे 2.5, एंड बिकॉज ये डिवाइड बाय 5 है तो मैं इसको भी डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, दैट इज बी 12B/5। बट नाउ वी नो दैट ए, ये 9 राउंड्स को कवर करने में जितना टाइम लगा उतने ही टाइम में ये 5 राउंड्स कवर करती है मैरी। सो वी कैन इक्वेट दीज बिकॉज दीज आर द टाइम एंड नथिंग एल्स। हम इसको इक्वेट कर देते हैं, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें A/B की वैल्यू मिल जाएगी। A/B इक्वल्स टू 12/27 दैट इज 4/9। हमें A और B की वैल्यू मिल चुकी है 4/9, तो 4A इक्वल्स टू 9B और A इक्वल्स टू 4B/9 हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। ये देखो हमने 4B/9 सब्सटीट्यूट किया A की वैल्यू, तो हमें मिल गया B इक्वल्स टू 225, तो A विल बी इक्वल टू 100। In how much time will Mary make 1 round of track A? That is 100 into 6/12.5. That is 48 seconds. That is your answer. Okay. In how many seconds will Mary make 1 round of track A? Answer will be 48. That is your answer. Sure. Let's move ahead. Two raised to 6x plus 2 raised to 3x plus 2 minus 21 equals to 0. अब देखो, हमें पता है जब x रेज टू 2 इंटू x रेज टू 3 करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है? x रेज टू 2 + 3। तो वही उन्होंने यहाँ पे किया है, अगर हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, दैट इज हम इसको ले लेंगे 2 रेज टू 6x
प्लस 2 raised to 3x इंटू 2 raised to 2 -21 इक्वल्स टू 0। ऐसा ले लिया तो ये 2 raised to 2 4 4 यहाँ आ जाएगा -17। अब ये 2 raised to 3x है, मैं इसको a अज्यूम कर लूंगा। लेट्स अज्यूम इट एज a। सो दिस विल बिकम a² प्लस a -17 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, 17 को स्प्लिट करो एंड 17 को ऐसे ही तो स्प्लिट नहीं कर सकते। a -4 2 2 2 स्क्वायर, सॉरी माय बैड, ये पूरा ब्रैकेट है तो यहाँ 4y आना चाहिए, ये 4 इंटू ये a 4a आना चाहिए। तो लेट्स, ये 17 नहीं हो जाएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया। सो दैट इज a² -4a प्लस 4a -21, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और 21 को स्प्लिट करना है सो दैट हमें 4 मिलेगा। सो वी विल डू +7 -3। सो द आंसर ऑफ दिस विल बी a इक्वल्स टू -7 और a इक्वल्स टू 3। ये हमने क्वाड्रेटिक फाइंड किया। अब 2 raised to 3x इक्वल्स टू -7 और 2 raised to 3x इक्वल्स टू 3। अब हमें दोनों का कुछ पता नहीं, बट सोल्यूशन में हर जगह पे लॉग दिया हुआ है, तो वी विल हैव टू टेक लॉग। -7 से रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन अब तक हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि किधर भी -7 मुझे नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे 3 दिख रहा है मुझे। सो आई विल टेक दिस लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड लॉग टू द बेस 2 लेंगे टू मेक इट कॉमन। सो 3x, दिस कैन बी रिटन एज, वेट इधर पार्टीशन डाल देता हूँ, ये वाला पार्ट कैन बी रिटन हियर एज 3x इंटू log 2 to the base 2 इक्वल्स टू log 3 to the base 2। सो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू log 3 to the base 2 divided by 3। दैट इज आवर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वैसा का वैसा दिया हुआ है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। चलो, we'll move on to the next sum। ये यहाँ पे हमें x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज 2 रूट्स, 4a प्लस 3a दिया हुआ है। तो हम b और c को गिनेंगे। थैंकफुली हमें b और c की जगह पे नंबर्स नहीं दिए, वरना ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बट b का वैल्यू, b इज व्हाट, सम ऑफ द रूट्स, सॉरी, b सम ऑफ द रूट्स। तो बट b -b बाई a इज द सम ऑफ रूट्स, तो वी विल टेक -b इक्वल्स टू, ये 4a प्लस 3 है, -b/a। तो मैंने -b इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पे 1 है ना a की वैल्यू, तो -b इक्वल्स टू -7a। वैसे ही c की वैल्यू निकालते हैं। c इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो c इक्वल्स टू 4a इंटू 3a इज इक्वल टू 12a²। तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी b² प्लस c इज इक्वल टू b², 49a प्लस 12a², 49a² प्लस 12a², 61a² मिल गई ये वैल्यू। अब हमें निकालनी है a इज एन इंटीजर, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें a इज एन इंटीजर आएगा। सो सीधा इक्वेट करते हैं, सीधा ऑप्शन यूज करते हैं। 61a² इक्वल्स टू 3721। आई डोंट नो अगर तुम्हें पता है या नहीं, बट 3721 इज 61²। तो a² इज इक्वल टू 61, तो a का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा। 549, 549 इक्वल्स टू 61a²। तो दिस इज 61, 61 minus 61, 610 minus 61, yeah, a² equals to 9। तो a will be -3, 3 इंटीजर हो सकता है। -3, 3 दोनों में से इंटीजर हो सकता है। 361 गिनते हैं, 361 by 61 इक्वल्स टू a²।
बट इसमें a की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, बिकॉज ये 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। 366 होता तो शायद फिर भी देख लेते, तो भी a का वैल्यू इंटीजर नहीं आता, तो ये गलत। 427 डिवाइड बाई 61, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 7 आ गया, तो a इक्वल्स टू √7 विच इज नॉट एन इंटीजर। √7 इज नॉट एन इंटीजर। द ओनली वन दैट गिव्स यू एन इंटीजर का वैल्यू इज ऑप्शन बी 549, एंड दैट इज योर आंसर। Let a1, a2 be integers such that a1 minus a2 plus a3 minus a4 ऑल्टरनेट हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और वो पूरा हम लंबा खींचे तो an इक्वल्स टू n, मतलब a3 का वैल्यू 2 हो जाएगा, a3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, a4 का वैल्यू 4 हो जाएगा, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब हम n का वैल्यू सिर्फ 1 या फिर 1 से ज्यादा ले सकते हैं। देन a51 प्लस 52 प्लस दिस, ये कितना आ जाएगा? तो अब देखो, मतलब इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम A1 से टोटल आगे तक ढूंढेंगे, और हम आगे जो ये 1023 है उसमें से 50 तक की वैल्यू माइनस कर देंगे। व्हाट आई एम सेइंग टिल नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स ट्राई टू फाइंड। पहले हम फॉर n इक्वल्स टू 1 देखते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1, A1 इक्वल्स टू 1, तो मैं इनको 2 ले लूं, तो A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 2, बट मुझे A1 की वैल्यू पता है, दैट 1 है, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू -1। सिमिलरली A3 लेते हैं, A1 A2 n इक्वल्स टू 3 लेते हैं, दैट इज A1 माइनस A2 प्लस A3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। इसका वैल्यू A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 3 3 3 3, ये 1, ये हो जाएगा 2 3 3, दिस विल बी इक्वल टू अगेन 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ये मेरे लिए इनफ है सेइंग दैट जब n इक्वल्स टू 1 तब आंसर आता है 1, जब n इक्वल्स टू 2 तब आंसर आता है -1, जब n इक्वल्स टू 3 आंसर आता है 1। सो आई कैन ब्लाइंडली से जब n इक्वल्स टू 4 होगा तब आंसर आएगा -1। ये एक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न फॉलो होता रहेगा, ऐसे वाले सम्स में ऐसे पैटर्न ही बनता है। जैसे पैटर्न बनता रहेगा उसमें, जब ये 1 है, ऑड नंबर के साथ +1 आता है, इवन नंबर के साथ -1 आता है, तो हमें वो भी करने की जरूरत नहीं, 50 माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, वो मैंने ज्यादा सोच लिया था। हमें तो सिर्फ वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू। तो अगर ये प्लस माइनस, इवन नंबर माइनस होता है, ऑड नंबर प्लस होता है, मुझे ढूंढना है 1023 तक, तो n इक्वल्स टू 1023, तो आंसर कितना आ जाएगा? क्योंकि ऑड है तो 1 आ जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी 1। सिर्फ पैटर्न निकालना है और कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल एबीसी, medians AB and BE are perpendicular to each other and have lengths of 12 and 9 centimeter respectively. Then the area of triangle ABC in square centimeter is. ये एक बार अपनी बुक में तुम भी ड्रॉ कर लो, मैं भी इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो, मुझे यहाँ पे क्या दिया गया है, दैट ये 3 मीडियंस है, मतलब 2 मीडियंस दिए, मैंने तीनों ड्रॉ कर दिया। ये 3 मीडियंस में क्या हो रहा है, ये जो AD और BE है, ये DE तो ये F ही होगा, और क्या ही होगा, तो BE एंड AD एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एंड द एरिया, दे हैव लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इज AD एंड BE इज 9 सेंटीमीटर। अब देखो, जब 3 मीडियंस मिलते हैं तब उसको, ये वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको नॉर्मली G लेते हैं, मैंने O ले लिया क्योंकि बीच की वैल्यू में क्या ही फर्क पड़ता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ नाम, तो O ले लिया। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये लेंथ हो जाएगी 8, ये लेंथ हो जाएगी 4, ये लेंथ हो जाएगी 6, और ये लेंथ हो जाएगी 3। इसकी मुझे लेंथ पता नहीं है, पर ये भी समझो 2x,
और 1x हो जाएगा, उतना ही होता है हमेशा। अब सेंट्रोइड की और एक मीडियंस की और एक प्रॉपर्टी है, ये जो पूरा जो कट होता है मीडियंस का, वो 6 इक्वल टुकड़ों में बंटता है। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने मेरे मन से डायग्राम बनाया, एक्चुअली मीडियन यहाँ पे होना चाहिए था, ये वाला मीडियन यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये तुम्हें इक्वल दिखता था। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये और ये 6 के 6 ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। तो हम इसका एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, मुझे पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। इसका एरिया विल बी 6 into 4 डिवाइड बाई 2, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो बेस इंटू हाइट, सो दैट इज 24 डिवाइड बाई 2, 12। 12 इज द एरिया ऑफ DOB। हम उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमें ABC का एरिया मिल जाएगा, सो दैट विल बी 72। ये आ गया अपना आंसर, आंसर इज 72। Sorry about that. Two circles, each of radius 4, touch externally. एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, तो हम दो इक्वल सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं और उनका रेडियस अज्यूम करेंगे 4। अज्यूम करो ये सर्कल है, मेरा ड्राइंग थोड़ा गंदा है। ओके, द टू सर्कल इज टच एक्सटर्नली बाय अ थर्ड सर्कल। If these three circles have a common tangent, then the radius to the third circle, these two are touched externally by a third circle. These three circles have a common tangent. Then the radius of the third circle in centimeter is, तीनों को साथ में tangent ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे? तीनों को टच करने वाला सर्कल अगर मैं ऐसे कर दूं तो उसमें साथ में tangent जाना टफ है। हम्म पहले इन दोनों को एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा छोटा सा। तो तीसरा सर्कल 4 सेंटीमीटर का नहीं है, वो छोटा है। लेट्स इसको थोड़ा ड्राइंग अच्छा कर देते हैं हम। लेट्स जस्ट ड्रॉ इट बिगर। आई हैव टू बिग सर्कल्स, इससे एक टेंजेंट निकलता है, ये सर्कल इसको कनेक्ट होता है और टेंजेंट को भी। जो तीसरा सर्कल है वो यहाँ पे कर देंगे ड्रॉ। ये सर्कल मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। हाँ, तो ये छोटा सा सर्कल, मुझे पता है ये वाले सर्कल जो है उसका रेडियस इज 4। मुझे इसका भी पता है रेडियस इज 4। मैं ऐसे इनको कंबाइन कर देता हूँ, ये बीच का वैल्यू हो जाएगा 8। ये 4 एंड ये 4। आई हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इन सेंटीमीटर। ये देखो, इतना वैल्यू मुझे नहीं पता, बट आई नो दैट इसका रेडियस इज R, इसका इज 4। सिमिलरली इसका इज 4, इसका इज R। तो ये 4 बन गया और ये हाइपोटेन्यूज विल बी 4R², 4 प्लस R दी होल स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द रेडियस, हमें R की वैल्यू निकालनी है। हाउ विल फिगर आउट R की वैल्यू? चलो लेट्स ट्राई। इसके लिए ये वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। हम्म पाई 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 1/√2, पाई बाई 3। पाई बाई 3 तो थोड़ा अनलाइकली लग रहा है, बट देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। आई नो दैट 4² प्लस x² is equal to 4 plus R the whole square. So that is 16 plus 8R plus R square. ये वाले की वैल्यू हो जाएगी 4 - R। एक्स की वैल्यू विल बी 4 - R, क्योंकि पूरी हाइट 4 है, उसमें से ये R माइनस करेंगे। सो लेट्स एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 - R दी होल स्क्वायर। तो 4² इज 16 प्लस 4 - R², 16 A² प्लस B², हाँ 4 - R² -8R
प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 8r प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 1। आंसर आ गया अपना बी आंसर, आर इक्वल्स टू 1। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एम एन की वैल्यूज निकालनी है, और इक्वेशन ये दिया हुआ है एम स्क्वायर प्लस 105 इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो पहले तो ये इक्वेशन को यूज करते हैं। अरे यार, 105 इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सब कुछ एक बाजू ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ये कितना आ जाएगा, एन माइनस एम एन प्लस एम। बट मुझे पता है दैट पॉजिटिव इंटीजर्स है दोनों, तो n माइनस एम विल बी स्मॉलर देन m प्लस एम, तो एंड n विल बी ग्रेटर देन m, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। क्योंकि अगर ये n इज स्मॉलर देन m आएगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी द केस। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो 105 का फैक्टर्स निकालते हैं। 105 3 इंटू 35, 5 इंटू 7, सो 1357 आएगा। लेट्स ट्राई। सबसे पहले 1 इंटू 1 इंटू 105 इक्वल्स टू n माइनस एम इंटू एन प्लस एम। ऐसा कब आएगा, जब इनका वैल्यू इज 52 एंड 53, तभी ही आएगा ये वाली वैल्यूज पे। ऐड करके 105 आया, सबट्रैक्ट करके 1 आया। चलो, व्हाट इफ आई हैव 3 इंटू 35, सबट्रैक्ट करके 3 आएगा, ऐड करके 35 आएगा, सबट्रैक्ट करके 3 ऐड करके 35, 12 नहीं 12 नहीं, इट विल बी 18 7, नहीं 18 17 नहीं हो पाएगा। एंड हैव टू टेक 18 19 19 19 प्लस 16, 19 16 आ सकेगा। 9 इनको ऐड किया तो 19, और ऐड किया तो 35, और सब्ट्रैक्ट किया तो ये, so 19 16, 15 इंटू 7, उनको सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आएगा, और ऐड किया तो 15 आएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो 7, ऐड किया तो 15, एंड यहाँ पे चौथा वाला हो जाएगा 5 इंटू 21। सब्ट्रैक्ट किया तो 7, ऐड किया तो 15, 10 10 10 12, 12 प्लस 3 नहीं, 11 4, यस 11 4, 11 4, एंड यहाँ आ जाएगा, ऐड किया तो 21 एंड सब्ट्रैक्ट किया तो 5, ऐड 16 5 नहीं, 14 7 नहीं, 15 एंड 6 नहीं, 13 13 एंड 7, 13 एंड 8, यस 13 एंड 8, 13 8, ये आ जाएगी वैल्यूज। ये चार ही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि बाकी 105 के फैक्टर्स ही नहीं है जो मैं निकाल सकता हूँ, बाकी तो सारे मैंने ऑलरेडी कर दिए। सो वी हैव 4 सच पेयर्स। ओके, एम और एन की वैल्यू 4 आ सकती है। इन अ 6 डिजिट नंबर, द 6 डिजिट दैट इज द राइट मोस्ट डिजिट, मतलब सबसे राइट वाला डिजिट इज सम ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स। तो हम नंबर पहले ले लेते हैं, ABCDEF। अब क्या दिया हुआ है, 6th डिजिट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट, तो F इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। Fifth is the sum of the first 2 digits, E equals to A plus B। Third digit is equal to first digit, C equals to A, तो यहाँ 2A plus B। Second digit is twice the first digit, so this will be 2A equals to A
plus 2a plus a equals to 4a. E equals to a plus b, so that is 3a. The largest possible value of the fourth digit is, फोर्थ डिजिट का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा. तो अब तक मुझे नंबर क्या मिला है? a, 2a, फोर्थ नहीं पता d. अच्छा, द फोर्थ डिजिट इज द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स डिजिट. फोर्थ डिजिट इज सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स डिजिट, तो d विल बी इक्वल टू 7a. यहाँ आ जाएगा 7a. बाद में 4a, 3a एंड 4a. ये नंबर है. ओके, अब देखो ए 3a 7a. अगर मैं a का वैल्यू 1 ले लूं, अंडरस्टैंड दीज आर ऑल सिंगल डिजिट्स. ओके, अगर सिंगल डिजिट है तो मैं a का वैल्यू 2 नहीं ले सकता. a का वैल्यू 2 लिया तो 14 आ जाएगा. 14 कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट. सो a का वैल्यू बाय डिफॉल्ट सिर्फ 1 आएगा. एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फोर्थ डिजिट इज 7. दैट इज 1 into 7. आंसर इज 7. दैट इज योर आंसर. चलो नेक्स्ट अब. अरे खत्म हो गया, पता ही नहीं चला. ओके, सो गाइज वी आर डन विद दिस. आज का पेपर सॉल्व हो गया. काफी टफ था. इंग्लिश क्वांट्स रिलेटिवली डुएबल था. एलआरडीआई थोड़े अलग थे. आई वुडंट से टफ, बट थोड़े अलग थे. I hope you guys enjoyed this. If you did, then please like the video. It really helps me. सिर्फ वो like button पे click करो and subscribe to the channel. It will be very very helpful. चलो, bye everyone.